Good evening, students. Today we'll start the new poem of class ninth. A Slumber Did My Spirit Seal. It's a poem written by William Wordsworth, and it's a very short poem having two stanzas. So we will go with the explanation of both the stanzas line by line. So this poem basically is written by William Wordsworth. Here is the image of the poet, as you can see on the screen. So, William Wordsworth was an English poet and he was born on April 7, 1770, and he died on April 23, 1850. He is remembered as a poet of spiritual and epistemological speculation, a poet concerned with the human relationship to nature, and a fierce advocate of using the vocabulary and speech patterns of common people in poetry. The poem is about the death of a loved one. This poem में basically the poet is talking about death of a loved one, his beloved, whose name is Lucy, and in most of his poems he has used this name Lucy. Uh, there are many Lucy poems in which there's an imaginary figure which is expected to be beloved of William Wordsworth. And in this poem also he has talked about that particular beloved whose name is Lucy. He is very well known for connecting humans' relationship with nature. What exactly human have with nature, it's all very elaborately presented in all his poems. So this is also a poem in which a bitter truth, a very factual reality is being elaborated, and through those lines he has told us that human being cannot escape from a bitter truth, that is death. And death is a thing that takes away our loved one from us forever, and then after death it is very impossible thing to be in communication with that particular person, because that particular person has left the world forever. And hence this reality, जो ये रियलिटी है डेथ की, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरी ह्यूमन बीइंग, ताकि जब वो रियलिटी आपके सामने आएगी यू आर रेडी फॉर दैट. अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. तो द मीनिंग ऑफ स्लम्बर इज़ अ डीप स्लीप, कोई गहरी नींद में होता है. एंड सोल मीन्स, स्पिरिट मीन्स सोल, जो हमारी आत्मा होती है. तो इन द फर्स्ट टू लाइन्स द पोएट इज सेइंग दैट अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक सील है जिसने मेरी सोल को पूरी तरह से इंटैक्ट कर दिया है, और मैं एक डीप स्लीप में हूँ और मुझे कोई भी फियर नहीं है. आई हैव नो फियर्स, आई एम free from all the fears. I have nothing to be worried about. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. But then he talks about a बिटर ट्रुथ, दैट इज़ डेथ. लेकिन एक जो उनकी बिलावट थी, उसकी डेथ के बाद उनको ऐसा लगा कि अब तक जो उनकी एक स्पिरिट थी जो कि बहुत ही डीप स्लीप में थी, जो उनकी सोल एक लंबी नींद ले रही थी, वो अचानक से क्या हो गई है, जाग गई है. अब उनको एहसास हो गया कि हाँ, जो वो सोचते थे कि देर इज़ नो ह्यूमन फियर दैट इज़ टू बी वरिड अबाउट, ऐसा एक चीज़ है जिससे आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, एस्केप नहीं कर सकते हो. एंड नाउ एज इज़ बिलवड लूसी इज़ डेड, सो ही इज़ अवेकन, ही इज़ इन अवेकन स्टेट, एंड ही फील्स लाइक कि नहीं, एक चीज़ ऐसी है जिससे आप कभी भी अपने आप को क्या नहीं कर सकते हो, फ्री नहीं कर सकते हो. नाउ ही सेज दैट शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स. अब क्योंकि उनकी बिलवड जो है वो उनको छोड़ के जा चुकी है, शी इज़ नो मोर ऑन दिस अर्थ, शी इज़ डेड फॉर एवर, एंड दैट इज़ वाई शी कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स. अर्ली ईयर्स मतलब जो भी टाइम पास हो रहा है, जो मंथ्स हैं, जो ईयर्स हैं, जो डेज़ हैं जो अर्थ पे पास हो रहे हैं, अब वो उनको फील नहीं कर पाएगी, बिकॉज शी इज़ नो मोर ऑन दिस अर्थ अलाइव. तो ये स्टैंजे में बेसिकली पोइट ने बताया है कि स्टार्टिंग टू लाइन में ही वॉज नॉट वरिड ऑफ एनीथिंग. ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्पिरिट को किसी ने सील करके एक डीप स्लीप में सुला दिया था, बट अचानक से उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है. एक ऐसी रियलिटी है जो हमें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. शुरू से हमें ये चीज़ एक्सेप्टेंस करना चाहिए कि जो हमारे बहुत करीबी लोग हैं वो एक दिन हमें छोड़ के जाएंगे, बिकॉज सम और दी अदर एवरी वन हैज़ टू डाई.
तो नाउ आफ्टर हिज बिलवड डेथ ही इज़ रियलाइजिंग दिस फैक्ट कि अब क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो शी विल नॉट बी एबल टू फील द टच ऑफ द मोमेंट्स डेट इज़ पासिंग ऑन, एंड ही इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग। अब उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि हाँ, ह्यूमन फियर्स भी होते हैं, उसमें सबसे बड़ा फियर है फियर ऑफ लूजिंग समवन यू लव। No motion has she now, no force, she neither hears nor sees. Rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. Now because she is dead, वो मर चुकी हैं, उनका क्रिमेशन हो गया है, जो क्रिश्चियन कस्टम्स के हिसाब से होता है कि वेन एवर अ पर्सन डाइज उसको कफिन में डाल के इट द पर्सन इज़ बuried इनसाइड द अर्थ। तो अब क्योंकि उनकी बिलवड भी मर चुकी हैं, अब उसमें कोई मोशन नहीं है, उनमें कोई फोर्स नहीं है, एंड शी हैज़ बीन क्रिमेटेड इनसाइड द अर्थ। शी नीदर हियर्स नॉट सीज। अब पोइट कुछ भी बोलेगा, शी इज़ नॉट एबल टू hear that thing, she is not able to see anything, she is dead, she is buried inside the earth. Rolled round in earth's diurnal course, diurnal means डेली रूटीन का, जो अर्थ का एक रोटेशन, अर्थ का जो एक रोटेशन होता है सन के चारों तरफ, जिससे क्या बनता है, डे और नाइट कॉज होती है, वो एक अर्थ का एक डेली रूटीन है। और क्योंकि अब उसकी जो बिलवड है वो अर्थ में क्या हो गई है, मतलब ज़मीन के अंदर अब उसको बरी कर दिया गया है। नाउ शी विल ऑल्सो फॉलो डैट डायरनल कोर्स ऑफ अर्थ अलॉन्ग विथ रॉक स्टोन्स एंड ट्रीज, क्योंकि अब वो क्या हो गई है, अब वो नेचर में एब्जॉर्ब हो गई है, एंड शी विल नाउ फॉलो द डायरनल कोर्स ऑफ अर्थ अलॉन्ग विद रॉक्स ट्रीज एंड स्टोन्स, क्योंकि अब वो मॉर्टल नहीं है, अब वो अलाइव नहीं है, अब वो नेचर में अब्जॉर्ब हो चुकी है। तो अब जो अर्थ का एक डायरनल कोर्स है, जो डेली रोटेशन वाला कोर्स है, वो भी क्या करेगी, उसको फील करेगी, उसके साथ उसको फॉलो करेगी, क्योंकि नाउ शी वोंट बी एबल टू feel any human activity. Now she will not be able to move, hear or see anything, whatever the poet is expressing through this poem or through his maybe coming वो poetries and all, she won't be able to feel any of those things because she is dead. So basically this poem talks about a bitter truth, that is death, and through death a person who is very close to us, our near and dear ones, are all taken away from us, and it becomes very difficult to communicate with them, because some or the other they all become a part of the nature. In the same way, William Wordsworth beloved, who is called as Lucy, she has also left the world, and now she won't be able to feel anything the poet is telling her or anything the poet used to feel about her. Now she is a part of a nature, and hence she will follow the diurnal course of the earth along with all the natural elements like stones, rocks, and trees. So, this was a very lovely poem written by William Wordsworth.